हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਟੌਪਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਥਿਊਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਪਲੱਸ ਕੰਪਲੀਟ ਪੀਵਾਈਕਿਊਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੇਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਹਰ ਸਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मतलब इस टॉपिक ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ, ਮੈंने ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਇਫੈਕਟ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰ, ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦਾ ਫੈਕਟਰ। ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੇਟ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, उस तो इलावा रेट कांस्टेंट की यूनिट तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, जीरो ऑर्डर ਲਈ अलग होएगी, फर्स्ट ऑर्डर ਲਈ अलग होएगी, सेकंड ऑर्डर ਲਈ अलग होएगी। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ठीक है, इस तो बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਵਾਈਕਿਊਸ ਨੇ। ठीक है, ऑल द पीवाईक्यूज। ठीक है, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ 'ਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਦਾ ਇਨ ਜਨਰਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੀਡ ਆਫ ਅ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੇ A ਤੋਂ B ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ठीक है, ए की और रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, मतलब रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट कितनी स्पीड ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇਗਾ। ठीक है, उसी चीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਸਦੀ ਰੇਟ। ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ at t is equal to 0, मतलब इनिशियली रिएक्टेंट ਦਾ A नॉट concentration है ਤੇ ਇਸ ਦਾ 0 है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, t, ठीक है, A नॉट ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ B ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਪੁੱਛ ਲਈ ਰੇਟ ਦੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਰੇਟ। ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟ। ਹੁਣ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ। ਤੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮੋਲੈਰਿਟੀ, मतलब ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨਿਟ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਰੇਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਰੇਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਰੇਟ is always fixed, is always fixed in spite of order of reaction। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ਤੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਈ ਸਭ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਰੇਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਾਲੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਲੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ, ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ। ਠੀਕ, ਕਾਫੀ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਈਅਰਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਨਲੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ। ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਡਰੇਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਡਰੇਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਐਂਡ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਤੇ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मतलब पुराने बॉन्ड टूटते ने, नवे बॉन्ड बनते ने। लाइक N2+3H2 gives 2NH3। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, N ਤੇ N ਦਾ ਬੌਂਡ
ब्रेक होएगा, H ਤੇ H ਦਾ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਵਾਂ N ਤੇ H ਦੇ ਬੌਂਡ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਤੇ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਂਦੀ, 3 ਮਿੰਟ ਲੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ पढ़ना की है। चलिए ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं रेट बारे। ठीक है, एक ਹੁੰਦਾ रेट, एक ਹੁੰਦਾ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ जिवें मैं बोलता रेट ऑफ ए, तो रेट ऑफ ए का की मतलब हो गया चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ ए सिंपली। मतलब उस केस च जे ਆਪਾਂ रेट ऑफ पर्टिकुलर सबस्टांस ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ केस च कोएफिशिएंट ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ नेगेटिव साइन भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, नेगेटिव भी नहीं लगाने की जरूरत, कुछ भी नहीं जरूरत। मतलब ए ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, रेट ऑफ ए। ਜੇ बट अपन तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ ली, रेट ऑफ रिएक्शन किस ਦੇ इक्वल होएगा ਤਾਂ किस तरह ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, नीचे आ जाती है। ठीक है ना, जिस तरह रिएक्टेंट लिए माइनस साइन लिखांगे। ठीक है, कोएफिशिएंट कितना 2 तो कितना आ जाएगा, अपॉन दी फॉर्म में आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय टी। सिमिलरली प्रोडक्ट लिए अपन लिखांगे +1/3 dB by dt। ठीक है, इस तरह ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, रेट ऑफ रिएक्शन ਦਾ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ क्वेश्चन करो इस ਦੇ बेस्ड। ठीक है, ਇਹ वाला क्वेश्चन लिखो, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आई होप ਤੁਸੀਂ लिख लिया होएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करता लिखना। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, -d by dt इज इक्वल टू -1/3 dH2 by dt इज इक्वल टू +½ dNH3 by dt। ठीक है, आई थिंक सब ਨੂੰ रेट ऑफ रिएक्शन ਦਾ एक्सप्रेशन लिखना आ गया होगा ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ। ठीक है, इस तरह ਦਾ बेसिक क्वेश्चन ਤਾਂ नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन ਬਣੂਗਾ ਕਿਵੇਂ, क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ देगा रेट ऑफ N2 ਦੇ देगा। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ रेट ऑफ NH3। ठीक है, सपोज ਤੁਹਾਨੂੰ देता रेट ऑफ N2। ठीक है, 10 मोल पर लीटर पर सेकंड है। ठीक है, 10 मोल पर लीटर पर सेकंड है। फाइंड द रेट ऑफ NH3। तो NH3 का रेट किमें होगा, दोनों ਆਪਾਂ कंपेयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा -dN2 by dt इज इक्वल टू +½ dNH3 by dt। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ, dNH3 by dt इज इक्वल टू किस इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम्स -dN2 by dt। फिर आप लिख सकते हैं 2 इंटू, ठीक है, 10 लिखेगा 10 मोल पर लीटर पर सेकंड, मतलब 20 मोल पर लीटर पर सेकंड की आ जाएगी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, इस तरह एक दी वैल्यू देके ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ठीक है, एक ਹੁੰਦੀ ਹੈ एवरेज रेट, एक ਹੁੰਦੀ ਹੈ इंस्टेंट रेट। इंस्टेंट रेट, ठीक है, एवरेज रेट ਦਾ ਕੀ मतलब ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, केमिकल रिएक्शन हुई, सपोज एट T इज इक्वल टू T1, T इज इक्वल टू T1 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ C1, एट T इज इक्वल टू T2 ਤੇ मतलब कुछ टाइम बाद कॉन्सेंट्रेशन है C2। देन ਜਿਹੜੀ एवरेज रेट ਦਾ फार्मूला ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ठीक है, C2 माइनस C1 ओवर T2 माइनस T1। ठीक है, ਉੱਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਕਦੇ ਵੀ 네ਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰੇਟ ਕਦੇ ਵੀ 네ਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ C2 ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ C1 ਨਾਲੋਂ। C2 ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ C1 ਨਾਲੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। मतलब C2 ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ C1। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆਣੀ ਸੀ C2 ਮਾਈਨਸ C1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਣੀ ਸੀ, ਬਟ ਰੇਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲਗਾਤਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲਗਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਐਵਰੇਜ रेट। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਦੋ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੇਟ ਐਟ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਸਟੈਂਟ, ਰੇਟ ਐਟ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਸਟੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ठीक है, सपोज इस तरह का कोई ग्राफ है। ठीक है, जे अपने सपोज उरे टाइम हैगा
पूरा टाइम मान लो t इज इक्वल टू 10 सेकंड हैगा। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ t इज इक्वल टू 10 सेकंड ਤੇ ਰੇਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ dc by dt, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ c ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੂਗਾ ਵੀ t इज इक्वल टू 10 सेकंड ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, t इज इक्वल टू 10 सेकंड ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह मैंने क्वेश्चन लिख के लेके आया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, ठीक है, और माइनस कर लो, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम। एक इक्वेशन दे रखी है अपन, ठीक है, सी दे रखी है, सी इज इक्वल टू 5 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द इनिशियल रेट एंड रेट एट t इज इक्वल टू 20 सेकंड। ठीक है, इनिशियल रेट का क्या मतलब हो गया एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 20 सेकंड का मतलब होया वो इंस्टेंटेनियस रेट पूछेगा कितने t इज इक्वल टू 20 सेकंड्स से। किस तरह क्वेश्चन करेंगे, ये वीडियो ਨੂੰ ਪਾਉਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ क्वेश्चन, एक बार वीडियो ਨੂੰ ਪਾਉਸ करो, ਤੁਸੀਂ सारे यानी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर मैं सॉल्व करदा। चलिए, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो सबसे पहले हमें किसको फाइंड आउट करना पड़ेगा dc बाई dt, दैट इज dc बाई dt किस इक्वल आ जाएगा अपने को। ठीक है, डिफरेंशिएशन करो, इसकी कितनी आ जाएगी 30 माइनस 10t आ जाएगी, 30 माइनस 10t आ जाएगी जो ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ t 0 ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੈਲਿਊ 30। ਠੀਕ ਹੈ, t 20 सेकंड ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 30 माइनस 10 इंटू, ठीक है, ये अपने को गलत डाटा देता मैंने। ठीक है, इसमें 2 सेकंड कर लो। ठीक है, 2 सेकंड बाद कितनी आ जाएगी 10 इंटू 2, दैट इज 10 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, और कितनी आ जाएगी 30 मोल पर लीटर पर सेकंड। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किस तरह ਆਪਾਂ एवरेज रेट ਤੇ इंस्टेंटेनियस रेट ਨੂੰ डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मतलब किसी रिएक्शन ਦੀ रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ਹੁੰਦੀ कंसंट्रेशन। मतलब ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ n। ਠੀਕ ਹੈ, n ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਰਡਰ, n ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਰੇ ਆਰਡਰ। ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਸਮਝੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਰੇਟ ਕਿਸ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਰਡਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਰੇਟ ਕਿਸ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਬਲ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1। मतलब जिस तरीके ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਟ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਡਬਲ, ਰੇਟ ਹੋ ਗਈ 4 ਟਾਈਮਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਆਰਡਰ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ k ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ c ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਪਾਵਰ n। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ k ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, k ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, n ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, और c की हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। एंड रेट ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ व्हाट इज द यूनिट ऑफ k, ਤੇ k ਦੀ ਕੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂ, k ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय c रेज़ टू पावर n, मतलब ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਹੁਣ ਰੇਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਲ पर लीटर ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ मतलब मोल पर लीटर ਦੀ ਪਾਵਰ 1 माइनस n इंटू ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ k ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਮਾइनस n इंटू ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵਰਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ n इज इक्वल टू 0। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ k ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ।
ठीक है जी। n इज इक्वल टू 1 है मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू, ठीक है 1 माइनस 1 0, मतलब किसी दी पावर 0 1, तो सेकंड इनवर्स आ जाएगी। ठीक है जी। n इज इक्वल टू 2 है तो अपने को की बन जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, मतलब रेट की यूनिट की बन जाएगी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, सब नु क्लियर है भाई। जी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन तक की बन जाएगी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। हुन ਤੁਹਾਨੂੰ पता है 1 डेसीमीटर क्यूब ਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ है 1 लीटर। ठीक है, ਤਾਂ ਉਹ लीटर ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकता है, मतलब 1 लीटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। n 3 ਲਈ ਕੀ ਆਏਗੀ ਯੂਨਿਟ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ रेट ठीक है यूनिट फाइंड आउट करने का तरीका पता चल जाऊगा। कई बार क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ नहीं कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है, बट ਤੁਸੀਂ रेट कांस्टेंट की यूनिट तो आइडिया लगा सकते हो कि वो किस ऑर्डर की रिएक्शन हैगी। जिस तरह एक क्वेश्चन हैगा, ठीक है, उरे अपन रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती k दी। ठीक है, रेट कांस्टेंट k की वैल्यू दे रखी है इस रिएक्शन के अंदर। की दे रखी है k की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ लीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मोल होएगा, मोल दी पावर -2, ठीक है, इंटू सेकंड इनवर्स। ठीक है, हुन आपने की करना है फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, चलो दसो भाई किहड़ी ऑर्डर दी होएगी। हुन देखो आपां जे इसनूं कंपेयर करिए मोल पर लीटर दी पावर 1 माइनस n इंटू सेकंड इनवर्स। हुन देखो जे आपां n दी वैल्यू तो पुट करांगे तां की बनेगा मोल दी पावर -2 लीटर स्क्वायर, ठीक है, इंटू सेकंड इनवर्स, मतलब n इज इक्वल टू 3 पुट करन ते की आ रही है ए वाली यूनिट आ रही है, तो इस ऑर्डर दा रिएक्शन इस ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। तो इस केस n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इट मींस किस ऑर्डर की रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर की की हैगी रिएक्शन है। क्लियर है सब ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ k into a ਦੀ ਪਾਵਰ 1 into b ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਫ, ਤਾਂ what is overall order, what is, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਲੋ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰੇਟ ਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ what is overall order of reaction, what is overall order of reaction, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, that is 1 plus half, that is 3/2। ठीक है, ਤਾਂ ओवरऑल ऑर्डर ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ 3/2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ठीक है, ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ करना है, खुद अटेम्प्ट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, फिर मेरा वीडियो सोल्यूशन देखना है। चलिए पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ अटेम्प्ट करना है खुद। ठीक है, ये भी ਤੁਹਾਡਾ मैं मास्टर कैडर ਦਾ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मास्टर कैडर ਦਾ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अटेम्प्ट करो, ठीक है, वीडियो ਨੂੰ पाउज करके ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, देखो यूनिट की थी डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर, मोल इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आप देखिए मोल पर लीटर दी पावर 1 माइनस n इंटू सेकंड इनवर्स सीगा। जे आप पुट कर दिए n की वैल्यू 2 तो की आ जाएगी यूनिट अपने को मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मतलब ऑर्डर किस ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। किस ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। सिंपल क्वेश्चन सी ना प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है, ये भी डिस्कस करते हैं आप क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। द रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन सबस्टांस ए एंड बी इज गिवन बाय, ठीक है, रेट लॉ का एक्सप्रेशन दे रखा अपन की दे रखेगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर एन इंटू बी रेज टू पावर एम। ठीक है, ऑन द डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब इनिशियली जे R1 की गल करिए R1 से अपन को ए वाला एक्सप्रेशन है। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ A ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਤਾ, मतलब ਪਹਿਲਾਂ A ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ 2A ਕਰਤਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਹਾਫਿੰਗ ਦਾ मतलब ਹਾਫ ਕਰਤੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ B, मतलब B ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤੀ ਹਾਫ ਕਰਤੀ, मतलब B/2 ਕਰਤੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, मतलब R2 ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ R1 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, मतलब ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ R2 ਓਵਰ R1। ਤਾਂ R2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, R2 कितना आ जाएगा K इंटू, ठीक है, 2A की पावर N इंटू B/2 की पावर N। क्लीयर है सब नू। तो इसमें आप देखिए था की बन जाएगा ये R2 इज इक्वल टू K इंटू, ठीक है, 2 स्क्वायर 4 इंटू, ठीक है, 2 की पावर, ठीक है, की बन जाएगा A की पावर N।
ठीक है, सॉरी उरे एम है उरे, ठीक है ना, इंटू बी दी पावर एम, ठीक है। हम 2 दी पावर एम कितना बन जाएगा भाई, ठीक है, उरे की 2 दी पावर एन सीगा, 2 दी पावर एन लिखना सी हमने, 2 दी पावर एन, ठीक है। बी दी पावर एम हैगा, ठीक है, 2 दी पावर कितना आ जाएगा, माइनस एम बन जाएगा ऊपर जाके, ठीक है ना। 1/2 दी पावर एम है, मतलब 2 दी पावर माइनस एम है, मतलब R2 किस इक्वल है, के इंटू ए दी पावर एन इंटू बी दी पावर एम इंटू 2 दी पावर एन इंटू 2 दी पावर माइनस एम। क्लियर है सब लोग। ਹੁਣ R2 ओवर R1 ਦਾ फाइंड आउट करना रेशियो, ठीक है। ਇਹ ਵਾਲੇ फैक्टर ਤਾਂ ਕੱਟ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, मतलब ਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ 2 रेज़ टू पावर n माइनस m, ठीक है ना। तो ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰੱਖੇ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा। ਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो ये वाला दस दो क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक, केड़ी करेक्ट स्टेटमेंट है। H2 रिएक्ट स्लोली विद Cl2, की H2 स्लोली रिएक्ट करता है, D2 फास्टर करता है, ठीक है, H2 फास्टर करता है या इक्वल रेट ते करते हैं। हुण तुहानूं पता है एक हुंदा हाइड्रोजन, एक हुंदा ड्यूटेरियम, दोहे आपस के अंदर की हुंदे ने आइसोटोप्स हुंदे ने, दोहे आपस के अंदर की हुंदे ने आइसोटोप्स हुंदे ने, ठीक है। आइसोटोप्स की हुंदे ने जिन्हां दा एटॉमिक नंबर की हुंदा हैगा सेम हुंदा हैगा, एटॉमिक नंबर दा की हुंदा हैगा सेम हुंदा है, बट मास नंबर की हुंदा डिफरेंट हुंदा है, मास नंबर की हुंदा हैगा डिफरेंट हुंदा हैगा। वो स्पीशीज जिन्हां दा एटॉमिक नंबर सेम हुंदा है ते मास नंबर डिफरेंट हुंदा है उन्हां नूं आपां बोलदे हैं आइसोटोप, लाइक 1H1, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ठीक है। हाइड्रोजन दे 3 आइसोटोप्स हुंदे ने अपने कोल। हुण जिहड़ा मास हैगा ड्यूटेरियम दा ज़्यादा कि प्रोटियम दा ज़्यादा हैगा, हाइड्रोजन दा ज़्यादा बेसिकली, ठीक है। ड्यूटेरियम दा ज़्यादा मास हैगा, ठीक है, ड्यूटेरियम दा ज़्यादा मास हैगा हाइड्रोजन नालों, जे आपां मोलर मास दी कंपेयर करिए। हुण जिहड़ी चीज़, ठीक है, हैवी होएगी वो थोड़ी जी लैस रिएक्टिव होएगी एज कंपेयर टू H2, ठीक है। दोए है तो बेसिकली हाइड्रोजन दी फॉर्म्स ही ने, दोए हाइड्रोजन ही ने, एक दूसरे दे आइसोटोप्स ने, बट हैवी किहड़ी हैगी D2 ते, ठीक है, लाइटर किहड़ा हैगा H2, मतलब जिहड़ा हल्का हुंदा है वो की हुंदा है फास्ट रिएक्टिव हुंदा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बन जाना सीगा H2 रिएक्ट फास्टर विद Cl2 देन D2, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर की आ जाएगा सी करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। क्लीयर है सब इन्ना केमिकल काइनेटिक्स। उस तो बाद ये वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करांगे। ये वाला क्वेश्चन 2 बार आ चुका है ਤੁਹਾਡੇ पेपर के अंदर ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ सॉल्व ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ठीक है। तो देख सकते हो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंदे नेगे, ठीक है। होर भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ਤੁਹਾਨੂੰ। उस तो पहले ਆਪਾਂ थोड़ी जी थ्योरी स्टार्ट करते हैं ਅੱਗੇ। चलिए ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ਨੂੰ डिटेल ਦੇ ਅੰਦਰ। ठीक है, सपोज कोई रिएक्शन मनो A तो B कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सपोज एट T इज इक्वल टू 0, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है A0, इसकी 0, ठीक है। एट T इज इक्वल टू T, ठीक, कुछ टाइम बाद की होगी इसकी A0 माइनस एक्स, इसकी कितनी हो जाएगी एक्स फॉर्म हो जाएगी। हम तुहानूं पता हैगा जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 1, तो आप रेट का एक्सप्रेशन लिखांगे रेट इज इक्वल टू के इंटू ए दी पावर 0, मतलब रेट किस दे इक्वल आ जाएगा के दे इक्वल आ जाएगा, रेट कॉन्स्टेंट दे इक्वल आ जाएगा। हुण जे आपां देखिए रेट का की मतलब है इज इक्वल टू के इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी। क्लीयर है सब नूं, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट है तो आप माइनस लिखेंगे, ठीक है। हुण देखो आप पुट करिए तो के किस दे इक्वल आ जाएगा, ठीक है, डी चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस एक्स माइनस, ठीक है, ए नॉट माइनस टी बाहर ही है ओवर डी टी, तो यह कितना आ जाएगा अपने को वैल्यू, ठीक है। ए नॉट ना ए नॉट कट जाएगा, मतलब के किसके इक्वल आ गया डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स किस इक्वल आ गया के डी टी। जब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दिए तो एक्स किस इक्वल आ गया के टी इक्वल आ गया, ठीक है, एक्स किस इक्वल आ गया के टी इक्वल आ गया। तो अपने को फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की है ए वाली, ठीक है, जिसमें मैं ए टी लिख दूंगा, तो ए टी किस इक्वल आएगा अपने को ए नॉट माइनस एक्स, तो ए टी किस इक्वल आ जाएगा ए नॉट माइनस के टी। क्लियर है सब नूं, ठीक है, मतलब ए नॉट की है इनिशियल कंसंट्रेशन ते ए टी की अपने को फाइनल कंसंट्रेशन कुछ टाइम बाद, ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, ठीक है, टी टाइम के बाद। तो ये वाला अपने को आ गया एक्सप्रैशन आ गया किसका, ठीक है, ए टी का, ठीक है। तब जीरो ऑर्डर लिए फार्मूला यूज करेंगे ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। इसमें स्टार मार्क कर लो कॉपी के अंदर, ठीक है। किस तरह यूज होंगे वो आप डिस्कस करेंगे। हुण जे अपने टी हाफ फाइंड आउट करना हो, हाफ टी हाफ का की मतलब हुंदा हैगा
ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ AT ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, A0/2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, A0/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A0 ਮਾਈਨਸ K। T ਹੁਣ T ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, T ਹਾਫ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ T ਹਾਫ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, T ਹਾਫ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, A0/2K। ਠੀਕ ਹੈ, A0/2K। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, और एक नोट स्टार मार्क करके लिख लो, कदे भी पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। ठीक है, स्टार मार्क करके नोट लिख लो, रेट ऑफ, या इस तरह लिखो, टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर है सब नु। ठीक है, टी हाफ की जगह डायरेक्टली रिलेशन है, क्योंकि टी हाफ का की फार्मूला बन गया जीरो ऑर्डरली A0/2K। ठीक है, दो फार्मूला याद रखने ने, एक तो ए वाला ते एक ए वाला। ठीक है, सब नु क्लियर होगा। ठीक है, हुण चलो ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ डिस्कस कर देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, उस तो पहले ਆਪਾਂ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किस दियां, जीरो ऑर्डर रिएक्शन दियां, कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ठीक है, देखो एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, जर्नली डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन द मेटल सरफेस एट हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, जर्नली डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन द मेटल सरफेस एट हाई कंसंट्रेशन छड्ड के प्रेशर लिख लो, एट हाई प्रेशर फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब तुसी अमाउंट कितना मर्जी ले लो, PH3 ਦਾ HI ਦਾ NH3 ਦਾ H2Cl2 ਦਾ। ठीक है, ਇਹ रिएक्शन ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਕਿਸ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ठीक है, कोई गैस आके डिकम्पोज होंगी है, डिकम्पोज मतलब डिसोशिएट होंगी है, तो वो ठीक है उस गैस की अमाउंट ते डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, कॉन्सनट्रेशन ते डिपेंड ही नहीं करती, मतलब उसके रिस्पैक्ट जिहड़ा ऑर्डर हुंदा उसका जीरो ऑर्डर हुंदा है। ठीक है, सारी एग्जांपल तुसीं ध्यान रख सकते हो। ठीक है, H2Cl सारी एग्जांपल। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ अ गैस ओवर द सरफेस ऑफ मैटल। हुण आपां ड्राइव करांगे फॉर्मूलाज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सपोज कोई रिएक्शन हो रही है A to B। ठीक है, सेम आपां at is equal to 0 and at is equal to T, इस दी कॉन्सनट्रेशन A0 इस दी 0, इस दी A0 माइनस X इस दी 0। तो रेट दा एक्सप्रेशन की लिखांगे, रेट की हुंदा dA/dt। ठीक है ना, dA/dt हुंदा हैगा, ते ये किस दे इक्वल होगा, K इनटू कॉन्सनट्रेशन ऑफ A। हुण उस दी पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आपां जे वैल्यू पुट करिए तो कितना आ जाएगा, K इनटू A दी कॉन्सनट्रेशन कितनी है, हुण A0 माइनस X दी पावर 1, पिछली किस दा 0 कैसी इज इक्वल टू माइनस d/dt ऑफ, ठीक है, A0 माइनस एक्स माइनस A0। ठीक है, तो अपने को क्या आ जाएगा, K इंटू A0 माइनस एक्स की इस इक्वल आ जाएगा माइनस d/dt ऑफ, सॉरी dx/dt। क्लियर है सब नू, dx/dt ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ dx/A0 ਮਾਈਨਸ x ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, k dt ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਹੇ ਤਰਫ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, इंटीग्रेशन कर देंगे, दोहे तरफ की कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, सपोज आप लिमिट सेट कर लेने 0 तो x। ठीक है, और लिमिट सेट कर लेने 0 तो t। ठीक है ना, हम जो इसकी आप डिफरेंशिएशन करांगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ln A0 माइनस x। ठीक है, 0 to x। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, kt आ जाएगा। क्लियर है, हम एक बार आप अपर लिमिट पुट करांगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करांगे। ठीक है, उस एक्सप्रैशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तुसीं याद नहीं रखनी इस डेरिवेशन, सिंपली फॉर्मूला याद रखना है कि आ जाएगा ln A0/A0 माइनस x इज इक्वल टू kt। ठीक है, ये वाला एक्सप्रैशन तुहाडे डेफिनेटली याद होना चाहिए। पूरा तुहाडा रेडियो एक्टिविटी का जिहड़ा प्रिंसीपल है इसी चैप्टर ते बेस्ड है। ठीक है, पूरा रेडियो एक्टिविटी का प्रिंसीपल भी इसी चैप्टर ते इसी इक्वेशन ते बेस्ड है। ठीक है, और A0 की हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, तो AT की हो गया मतलब फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब A0 माइनस की हो गया x हो गया। ठीक है, किस इक्वल हो गया, A0 माइनस x के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन आप इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू 1/T ln A0/AT। क्लियर है सब नु, क्लियर है जी सारा फॉर्मूलास। ठीक है, इन्हों के बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम आप
फाइंड आउट करते हैं टी हाफ। ठीक है, टी हाफ का की मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, टी हाफ का की मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ at ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੇ a0/2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੇ, at ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੇ a0/2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ टी हाफ इज इक्वल टू, ठीक है 1/k ਸੀਗਾ इनटू ln a0/at ਸੀਗਾ, a0/at ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ a0/2, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ टी हाफ कितना आ जाएगा ln2 आ जाएगा, ln2 बाय के आ जाएगा, ln2 का मतलब क्या हो गया 2.303 इनटू, ठीक है log 2 कितना होगा 0.301, ठीक है ओवर के, मतलब ये कितना आ जाएगा 0.693 बाय के इज इक्वल टू टी हाफ। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, ये भी तो उसी याद रखना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार मार्क करके नोट कर लो, द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ली टी हाफ ते रेट कांस्टेंट दा रिलेशन। ठीक है, लिख लो रे। क्लीयर है सब ਨੂੰ ਹੁਣ 50% ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀ ਹਾਫ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 50% ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ 50% ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਚੀ ਕਿੰਨੀ 50% ਬਚੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 25। मतलब ਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 75% ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2t ਹਾਫ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 25 ਹੋ ਗਈ, 25 ਨੈਕਸਟ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 12.5, मतलब 12.5 ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਦਈਏ मतलब 87.5% ਦਾ ਕੀ मतलब ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3t ਹਾਫ। सिमिलरली 93.25% ਦਾ ਕੀ मतलब ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4t ਹਾਫ। ठीक है, 90% ਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ 10/3t ਹਾਫ। ठीक है, ਜੇ 99% ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 20/3t ਹਾਫ, मतलब 6.66t ਹਾਫ। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ने तुम दसो किस तरह यूज करने ने 3.33t हाफ। ठीक है, टी 99.9% 99.9% का की मतलब होता है 10t हाफ, इसका की मतलब होता है 10t हाफ। ठीक है ना, ये सारे वैल्यू याद रखने 50% का मतलब t हाफ, 75% का मतलब 2t हाफ, ठीक है 87.5 का मतलब 3t हाफ, 93.25 का मतलब 4t हाफ, 90% का मतलब 10/3t हाफ, 99 का मतलब 20/3t हाफ। ठीक है, तो T99 तक ही हो गया 10t हाफ। ठीक है, हम इसके बेस कुछ क्वेश्चन कर देंगे ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ क्लैरिटी हो सके कि इस ट्रिक ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ यूज किਵੇਂ करना है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है इसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड। ठीक है, कहना क्या है द टी हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट। टी हाफ कितना देता है 10 मिनट्स देता है। ठीक है, 99.9% रिएक्शन की कंप्लीशन ली कितना अपने को, ठीक है टाइम लगेगा। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है टी 99.9% का की मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 10t हाफ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 10 into 10 minutes that is 100 minutes। ठीक है, देखो ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रिक पता ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ। ठीक है, सेम क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ प्रीवियस ईयर ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦਾ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, उरे ए जो की है मेटल है गोल्ड। ठीक है, तो एच आई का ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ऑन द सरफेस ऑफ मेटल की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ਨੂੰ फॉलो करता ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ बी। ठीक है, द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ सेकंड इनवर्स। ठीक है, देखो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿਉਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी तुझे सॉल्व करना है, ये मैरिटोरियस लेक्चर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी साल का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं किहड़े स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। ठीक है, वीडियो को पाउज करो तो सॉल्व करो। चलिए मैं स्टार्ट करदा। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द 50% रिएक्शन कंप्लीट इन टी हाफ, मतलब टी सेकंड, मतलब टी हाफ उस रिएक्शन का कितना दिता है। ठीक है, टी सेकंड दिता है तो अपने पूछे 99.9% रिएक्शन कितने टाइम कंप्लीट हो जाएगी। 99.9% का मतलब होता है 10t हाफ, मतलब 10 into t that is 10t।
ठीक है, मतलब कितने सेकंड च क्वेश्चन हो जाना सीगा, 10 सेकंड ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਨਸੈਪਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਲਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ, ਤੇ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਲਈ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, मोल पर लीटर पर सेकंड, तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट बन जाएगी सेकंड इनवर्स। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है मैरिटोरियस लेक्चर के एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन है। ठीक है, उस तो इलावा होर भी बहुत सारे क्वेश्चन ने मेरे लिए, सारे आप डिस्कस कर देंगे। उस तो पहले आप फर्स्ट ऑर्डर में थोड़ा जिहा होर ट्रिक सीख देंगे कि फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन तुसीं सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहता की है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 40% ऑफ द रिएक्शन इज 10 मिनट्स। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੀ, k is equal to 1/t ln a0 by at। ਹੁਣ 40% ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ 40% ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। 40% ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ 40% ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ a0 ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, a0 ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ 100 ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਅਮਾਊਂਟ, ਤੇ 40% ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਚੀ ਕਿੰਨੀ 60%। ਤਾਂ 80 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 60 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ k ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, k is equal to 1/t, t ਕਿੰਨਾ 10 ਮਿੰਟਸ into ln a0 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 100, 80 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 60 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/k ln a0 by at। ठीक है, हम k कितों कड्डांगे ਆਪਾਂ इस वाली इक्वेशन तो कड्डांगे, तो उरे पुट कर देंगे k की वैल्यू। ठीक है, इनटू ln a0 by 80 कितना आ जाएगा। ठीक है, उरे 100 डिवाइड बाय 80 आ जाएगा। ठीक है, इसमें सॉल्व करके आप कर लेंगे, टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर रहा, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਥਡਸ ਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਮੈਥਡ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ठीक है, ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट मार्क करनगे उन्होंने मतलब कॉन्सैप्ट क्लीयर है। ठीक है, कुछ होर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दसदा हूँ मैं, इसके बेस से काफ़ी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन A0 80 एंड नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ठीक है, अगर हाफ लाइफ में एन ना रिप्रेजेंट करता तो जी अपन को A0 by 80 की वैल्यू होंगी है A0 by 80, मतलब इनिशियल कंसनट्रेशन ओवर फाइनल कंसनट्रेशन किस दी होंगी है 2 raised to power n दे। ठीक है, और n की होंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। हुण जे अपन जिन्ने नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स ने इनटू हाफ लाइफ कर दिता, आप लोग क्या आ जाएगा टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा, टोटल टाइम टी आ जाएगा। क्लीयर है सब नूं। हुण तुहाडे तो कई बार अपने कोल टी की वैल्यू दित्ती होएगी। ठीक है, टी हाफ की वैल्यू दित्ती होएगी, उस तो पहले नंबर ऑफ आप हाफ लाइफ्स कैलकुलेट कर लेंगे एन। ठीक है, फिर इस तो अपने तो फाइनल कंसनट्रेशन पूछ सकता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, तुसीं वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है इस वाले फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तुसीं वीडियो को पॉज करो। ठीक है, फिर सॉल्व करो। ठीक है, 512 मोलर है। ठीक है, हम देखो क्वेश्चन की कह रहेगा, इन अ पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 512 मोलर टू 128 मोलर इन 40 मिनट्स। मतलब टाइम पीरियड दे रखे टी। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन A0, फाइनल कंसंट्रेशन AT। तो आप जी A0 बाय AT की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो इसमें आप 2 raised to power n नाल कंपेयर करिए, तो कितना आ जाएगा 512 डिवाइड बाय 128, मतलब 2 raised to power n कितना आ गया 4, तो n कितना आ गया और 2 आ गया। मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितने ने 2। हुण 2 इंटू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मतलब टी हाफ किस दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, टी एन इंटू टी हाफ किस दिक्कत आ गया टी दिक्कत आ जाएगा, तो टी हाफ किस दिक्कत आ जाएगा और ठीक है टी बाई 2 दैट इज 40 बाई 2 दैट इज 20 मिनट्स। ठीक है, मतलब हाफ लाइफ कितना है 20 मिनट्स है। हूँ के फाइंड आउट करना अपने रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला कि होगा फर्स्ट ऑर्डर के इज इक्वल टू 0.693 ओवर A0 सॉरी टी हाफ। हूँ अपन ठीक है 0.693 ओवर टी हाफ के की वैल्यू आ जाएगा के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय 20। ठीक है ना, मिनट इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर होया। इस तरह आप
ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਸੋਲਵ ਆਵਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਥਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਦੱਸੋ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਥਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ k ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/t ln a0/at। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ln ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, k ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/40 ਇੰਟੂ ln 512 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 128। ਤੇ k ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/40 ln ਤੇ 4 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਮੈਂ 1/40 ln, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2 ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ 2 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟੂ ln 2 ਲਿਖ ਸਕਦਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਸੇਮ ਹੀ ਆंसर ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ठीक है, नेक्स्ट ਆਪਾਂ डिस्कस कर देंगे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का की मतलब होएगा ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ठीक है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स दो केस बनते हैं, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ A गिविंग B, ठीक है, A ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ A plus B गिविंग ਪ੍ਰੋਡਕਟ। मतलब इस केस 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, K into A ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਟ इज इक्वल टू K into A into B। ठीक है, मान लो इसका ऑर्डर भी 1 है, इसका ऑर्डर भी 1 है, तो ये भी सेकंड ऑर्डर है, ये भी सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, दो ही की ने अलग अलग केस ने। ठीक है, ये वाले केसेस के अंदर ही अपने को केड़ा कांसेप्ट होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कांसेप्ट। ठीक है, इस वाले कांसेप्ट जी जो दो ही रिएक्टेंट्स अलग अलग कंसंट्रेशन के होंगे ने, तो उस केस च अपने को बनता होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर का कांसेप्ट। ठीक है, मैं समझाना भी थानू। ठीक है, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा, सिंपल फार्मूला याद रखियो तुसीं। ते फार्मूला की होंदा है अपने को, ठीक है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू kt। ठीक है, ये वाला फार्मूला याद रहेगा, 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू kt। क्लियर है सबनों। ठीक है, हुण मैं तुहानूं समराइज करदा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। ठीक है, मैं उरे लिखदा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, उरे मैं लिखदा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो मैं उरे लिखदा थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, सॉरी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, इस केस फॉर्मूला आया अपने को AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। ठीक है, ये वाला रिलेशन आया सीगा, ते T हाफ का रिलेशन क्या आया सीगा, A0 बाय 2K। मतलब T हाफ किस दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे। T हाफ किस दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे। ठीक है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के अंदर की करवाया सी मैंने थानू, AT सॉरी A0 बाय AT द ln ਲਈ ਆਪਾਂ। ठीक है, इज इक्वल टू KT। ठीक है, मतलब ln A0 बाय AT इज इक्वल टू KT। ठीक है, ये वाला फार्मूला अपन डिस्कस किया सीगा, ते उरे T हाफ का की फार्मूला आया सीगा 0.693 बाय T हाफ, सॉरी K। ठीक है, मतलब उरे जेड़ा अपने को T हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन A0। ठीक है, थर्ड केस के अंदर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर की होएगा। ठीक है, फार्मूला की बने से अपने को 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू KT। ठीक है, T जो T हाफ इक्वल हो जाएगा, तो A0 किस इक्वल हो जाएगा, ठीक है, A0 बाय 2, मतलब AT किस इक्वल हो जाएगा, A0 बाय 2 इक्वल हो जाएगा। तो इस फार्मूला के अंदर पुट करिए अपा, तो A0 बाय 2 मतलब 2/a0 हो जाएगा, सॉरी A0 पुट करता है 2 माइनस 2/a0 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू KT। तो और क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 मतलब A0 एलसीएम आ गया। ठीक है, 2 माइनस 1 1/a0 इज इक्वल टू KT आ जाएगा, मतलब T हाफ आ जाएगा, सॉरी T हाफ किस इक्वल आ गया 1/K इंटू A0। मतलब उरे जो T हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऑपोजिट रिलेशन रखता है। ठीक है ना, T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लीयर है सारे नूं, ये इन्ना चार्ट याद रख लेने, डेफिनेटली ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना, ये चार्ट बस इन्ना कुछ सफिशिएंट है। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੇ। ठीक है, ये वाले ये याद कर दियो, ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन विदिन सैकेंड होएगा। ठीक है ना, विदिन सैकेंड होंगे क्वेश्चन, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ याद कर लेना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਹੋਰ डिस्कस करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। ਹੁਣ देखो सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केस 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੋਹੇ डिफरेंट ले लेने हैं।
ठीक है दोहे मतलब डिफरेंट ले लेने रिएक्टेंट्स ਤਾਂ ਰੇਟ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ k ਇਨਟੂ ਠੀਕ ਹੈ a ਇਨਟੂ b ਮਤਲਬ a b ਦੋਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਈਏ ਮਤਲਬ ਜਾਂ a ਜਾਂ b ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਦਾ देखो जिस तरह अपने एग्जांपल लिखे ने एग्जांपल्स ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहली है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर ठीक है दूसरी है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ठीक है हाइड्रोलिसिस किस केस के अंदर होता है वाटर के केस में होता है वाटर की प्रेजेंस होता है वाटर की होता है एक्सेस के अंदर होता है मतलब वाटर की करता रेट ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ मतलब रिएक्शन वैसे ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਸੂਡੋ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਬਿਹੇਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੂਡੋ ਫਸਟ ਆਰਡਰ रिएक्शंस ठीक है दो ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ने गया याद कर लो पहली है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर ठीक है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर बोल दो चाहे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोल दो ठीक है एक गल है ठीक है दूसरी है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स ठीक है ना ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ने ठीक है प्रीवियस ईयर के अंदर ही पूछे गए ने ते अपकमिंग एग्जाम के अंदर ही पूछिया जा सकते हैं पूरे अपने कोल कॉन्सेप्ट खत्म होंदा गा रेट एंड ठीक है ऑर्डर दा मतलब कॉन्सनट्रेशन दा जेड़ा फैक्टर सीगा वो कंप्लीट होंदा गा ते कॉन्सनट्रेशन दा जेड़ा फैक्टर सीगा वो कंप्लीट होंदा गा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ तो ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਠੀਕ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ मतलब रिएक्टेंट तो की बनाना होंगे प्रोडक्ट बनाना होंगे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने आपस के अंदर कोलाइड करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलिजन करेंगे आपस के अंदर ठीक है टक्कर करेंगे ठीक है तो कोलिजन लिए दो इफेक्टिव कंडीशन होंगे ने ठीक है फॉर इफेक्टिव कोलिजन ठीक है फॉर इफेक्टिव कोलिजन ठीक है दो कंडीशन मस्ट फॉलो होनी चाहिए ने किहड़ी होंगे ने एक तो होंगी है प्रॉपर ओरिएंटेशन ठीक है सैकेंड कंडीशन होंगी है सफिशिएंट एनर्जी इस सफिशिएंट एनर्जी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ एनर्जी ਕਿ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ मतलब ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ A ਨਾਲ मतलब इस तरह नहीं जो एक एटम आया है एक आया है इधर जा रहा है इधर जा रहा है हल्का फुल्का टच करके नहीं इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ मतलब ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ मतलब रिएक्शन किस तरह प्रोग्रेस कर रही है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ड्रॉ करा ਤਾਂ ग्राफ कुछ इस नेचर ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ठीक है इस तरह का ग्राफ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ठीक है ना एक दो तरह ਦੇ ਹੁੰਦੇ एंडोथर्मिक ਤੇ एक्सोथर्मिक ठीक है उरे की ਹੁੰਦਾ है रिएक्टेंट ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ એનર્ਜੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ठीक है उरे रिएक्टेंट आके फिर तो प्रोडक्ट की बन जाएगा तुरंत बन जाएगा इस स्टेट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ट्रांजिशन स्टेट ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्लियर है इस चीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब सब तो पहला रिएक्टेंट तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया जो तो नाल दी नाल किस च कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बट उस लिए दो कंडीशन होनी चाहिए ने एक तो होनी चाहिए प्रॉपर ओरिएंटेशन जिसਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ कोलिजन फैक्टर ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ कोलिजन होने चाहिए ने ਤੇ दूसरा ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एनर्जी फैक्टर जिसਨੂੰ ਆਪਾਂ E ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ठीक है ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ एनर्जी ਆਪਾਂ ग्राफ डिस्कस ਕਰਦੇ ਹਾਂ ठीक जस्ट एक सेकंड ये बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए मैं थोड़े लिए ठीक है देखो आप ग्राफ से डिस्कस करते हैं ठीक है हम देखो अपने को रिएक्टेंट है ठीक है रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी होगी ER ठीक है प्रोडक्ट की कुछ एनर्जी होगी हम प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट नाल ज़्यादा भी हो सकती है या प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट नाल घट भी हो सकती है ठीक है और EP है और ER है ठीक है दो केस ने ज़्यादा प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट नाल ज़्यादा होगी या रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट नाल ज़्यादा होगी हुण देखो जो प्रोडक्ट की एनर्जी घट होगी ठीक है प्रोडक्ट की एनर्जी की होगी घट होगी मतलब E ऑफ P लैस दैन E ऑफ
R होएगा। मतलब इस केस के अंदर किस तरह की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इस तरह की रिएक्शन ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ਹੋ ਗਿਆ उसके उन्नी ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, एंडोथर्मिक ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਉਨੀ ਲੈਸ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੇ मैंने ग्राफ इस तरह ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ठीक है जी, आप डेल्टा एच फाइंड आउट करिए, डेल्टा एच की होंगे ईपी माइनस ई आर। इस केस की आ गया प्रोडक्ट की एनर्जी घट हैगी, तो इस केस डेल्टा एच की आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। डेल्टा एच नेगेटिव आने का मतलब है रिएक्शन की है एक्सोथर्मिक। इस केस ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा, तो डेल्टा एच की आएगा ईपी माइनस ई आर। ठीक है, की आ जाएगी वैल्यू डेल्टा एच की पॉजिटिव आ जाएगी। फिर पॉजिटिव आने का मतलब है एंडोथर्मिक। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होंगी है, तो एक्सोथर्मिक के केस रिएक्टेंट की एनर्जी होंगी है ज़्यादा होंगी है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਲੀਕੂਲ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ, ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੜੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये वाला रिलेशन आप परों ड्राइव कर सकते। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स क्लीयर हो गए होंगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, चलिए ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन की होंगी अपने को, K इज इक्वल टू A e रेज़ टू पावर माइनस ई ए ओवर आर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, आर्हेनियस इक्वेशन बोल दिया। ठीक है जी, आप दो डिफरेंट कंडीशन से देखिए, मतलब ठीक है, सपोज एट टी इज इक्वल टू T1 ਤੇ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ K1, T इज इक्वल टू T2 ਤੇ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ K2, then log of K2 by K1 ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, EA over 2.303 R 1 over T1 minus 1 over T। मतलब इस तरह का क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ K1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦੇ, T1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦੇ, T2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦੇ, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे दे, तो K2 की पूछ ले, कोई एक फैक्टर पूछा जा सकता है। फिर नोट रखना है कि टेम्परेचर हमेशा कैल्विन के अंदर ही पुट करना है, टेम्परेचर हमेशा कैल्विन के अंदर ही पुट करना है। बट उस तो भी ज़्यादा फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं होती, एक तो ए वाली फॉर्म इंपॉर्टेंट होगी। जो मैं इसका एल एन लेना, नेचुरल लॉग लेना, तो एल एन के किस इक्वल आ जाएगा, एल एन ए माइनस ई ए ओवर आर टी, क्योंकि आर ई ਤੇ एल एन की होते हैं आपस में कट जाते हैं। क्लीयर है, एक तो ए वाली फॉर्म भी हो सकती है, ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ एल एन लॉग के अंदर कन्वर्ट कर दिए ਤਾਂ ਕੀ हो जाएगा, log k is equal to log of a माइनस ए ओवर 2.303 RT। ठीक है, ए वाली फॉर्म भी करैक्ट हैगी। ठीक है, एक होर फॉर्म होंगी इसकी। ठीक है जी, मैं इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करदा, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं टी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करदा, ताकि बन जाएगा एल एन डी बाई डी टी ऑफ एल एन के इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए। ठीक है, ए तक ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ए की और ए कॉन्स्टेंट है, किसनू स्पेसिफिक करता है, ठीक है, इसमें आप बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, एक वैल्यू होंगी है कॉन्स्टेंट हैगी, तो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, जीरो माइनस डी बाई डी टी ऑफ ई ए ओवर आर टी। ठीक है, तो आप इसमें डिफरेंशिएट कर देंगे तो अपने को क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एल एन के इज इक्वल टू ई ए ओवर आर टी स्क्वायर। ठीक है, इस वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे तो अपने को कितना देगा, ई ए ओवर आर टी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली फॉर्म भी की अपने को वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट ही अपने को आर्हेनियस इक्वेशन, उस तो बाद आप डिस्कस करते हैं रोल ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, रोल ऑफ कैटलिस्ट, रोल ऑफ कैटलिस्ट। ठीक, कैटलिस्ट की कर देगा, जिस तरह आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाई, ठीक है, उरे अपने को एनर्जी है, उरे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, तो इस केस के अंदर की होएगा, सपोज रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है पहला विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट की सीगा ए वाला पास सीगा। ठीक है, इन्नी एनर्जी अपन देनी पैनी सीगी। ठीक है, विद कैटलिस्ट की होएगा, ठीक है, इसमें लिख लो रेड पेन नाल, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट।
हुण देखो ठीक है, ए वाला पाथ की हो जाएगा विद कैटलिस्ट हो जाएगा, मतलब विद कैटलिस्ट की हो गया एक्टिवेशन एनर्जी की कर दिंदा डिक्रीज कर दिंदा है, जिस करके रेट ऑफ रिएक्शन की हो जाती है फास्ट हो जाती है। तो कैटलिस्ट की करदा है किसी रिएक्शन की रेट ਨੂੰ फास्ट कर दिंदा है बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, लिख लो कैटलिस्ट डिक्रीज द सॉरी कैटलिस्ट इंक्रीज द rate of reaction by lowering the activation energy। ठीक है, आई होप ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਥਿਊਰੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन होमवर्क ਦੇ ਕੇ ਆਨਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ठीक है, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ठीक है, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ठीक है, ਸਿੰਪਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦਾ ਰੇਟ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, मतलब उसका ऑर्डर की ਹੁੰਦਾ एक्सपेरिमेंट ਹੁੰਦਾ है, ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ। ठीक है, उस तो बाद ये आर्यनिस थ्योरी है, जी किसने पढ़नी हुई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ थ्योरी देती। ठीक है, जिस तरह एनर्जी बैरियर हो गया, ठीक है, ओरिएंटेशन बैरियर हो गया। ठीक है, ग्राफ्स मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बता चुका। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें सॉल्व करते ਆਪਾਂ। ठीक है, इस अपने पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ स्लो स्टैप ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, RDS ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਰੀਡਿਟਰਮਾइनिंग स्टैप ਕੀ ਹੋਏਗਾ K into X into Y2। क्लियर है सब ਨੂੰ। ठीक है, स्लो स्टैप ਕੀ ਹੁੰਦਾ RDS ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ठीक है, और ये दोहे फास्ट ने, ये वाला स्टैप ਕੀ है स्लो है। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗੀ X2 गिविंग X plus X fast, और ਆਪਾਂ ਜੇ K इक्विलिब्रियम ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब x² over x2। क्लियर है, तो x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ K इक्विलिब्रियम into x2 तो अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, मतलब रेट किस इक्वल आ जाएगा K इंटू K इक्विलिब्रियम की पावर हाफ इंटू x2 की पावर हाफ इंटू y2 की पावर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ऑर्डर की हो जाएगा 1 प्लस हाफ। ठीक है, मतलब 3/2। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन कदे पूछा नहीं गया, बट पूछा जा सकता है। इस की लगाना होता अपने फास्ट इक्विलिब्रियम मेथड। ठीक है, ये दो क्वेश्चन थोड़े होमवर्क ने। ठीक है, मैं करवा चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, ये भी तुम अटैम्प्ट कर सकते होंगे, मैं करवा चुके हैं भी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुका सुनो, ये भी करवा चुके हैं। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन के आंसर तुम मार्क करने हैं कमेंट सैक्शन अंदर। ए फॉर्म भी करवा चुके हैं, ये भी करवा चुके हैं, ये भी करवा चुके हैं। ठीक है, ये भी करवा चुके हैं। ठीक है, A to Z क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ प्रीवियस ईयर ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ क्वेश्चन ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ में ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ 1/kx। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ठीक है, टेस्ट सीरीज का प्राइस है 600 रुपीज़। की फीचर्स ने ठीक है 25 प्लस टेस्ट ने ऐप के अंदर। ठीक है, हर एक टेस्ट का थोड़ा वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, उस तो इलावा प्रॉपर ठीक है एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ठीक है, जिस तरह तुम कोई भी डाउट आया ठीक है नाल तुम कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो थ्रू वीडियो सोल्यूशन। उस तो इलावा प्राइस बिल्कुल अफोर्डेबल है। ठीक है, सेम टाइप की टेस्ट सीरीज इस तो भी मतलब ज़्यादा घट वधिया टेस्ट सीरीज भी थोड़ा मार्केट के अंदर ठीक है 3000 तक मिलती हैं। ठीक है, तो 600 रुपीज़ सब तो बेस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। जिसने डैमो लेने हो डैमो भी ज्वाइन कर सकते हैं टैलीग्राम से। ठीक है, मैं कई टेस्ट पा रखे हैं टैलीग्राम से। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज की फायदा है कि मैं PYQs बिच ही पा देना टेस्ट के अंदर। ये मेरे को टोटल 35 क्वेश्चन एक टेस्ट के अंदर, तो मैं 25 नवे क्वेश्चन पाऊंगा, 10 PYQ पाऊंगा। ठीक है, तो नवे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाती है ते नाल दी नाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हो जाती है प्रैक्टिस हो जाती है स्टूडेंट्स। आई होप तुहानू ये वाला सैशन ठीक है इंटरेस्टिंग लग्या होगा, तो काफ़ी सारे नवे कॉन्सैप्ट सीखने को मिले होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा
8437068169।